Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we will be learning how to calculate the share of profits of the deceased partner Now, who is a deceased partner? जिस पार्टनर की बेटा डेथ हो जाती है उसको हम डिसीज पार्टनर कहते हैं. Now we know that death can occur anytime, right? So we have to calculate the amount of profit of the firm, it could be loss also, but amount of profit of the firm from the date of closure of balance sheet, और वो हमारी कौन सी होती है 31st of March, let's say 2019, till the date of the death of a partner. Let's say the partner died on 1st of July 2019. That means we have to calculate. देखिए बेटा, जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर तो नहीं, डिसीज पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पार्टनर की तो डेथ हो गई, वो तो कुछ नहीं लेके जा सकता, लेकिन डिसीज पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और हम कह सकते हैं लीगल हायर्स, वो होंगे जो कि कौन, एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करेंगे. ठीक है, तो एग्जीक्यूटर फर्म से जो भी अमाउंट डिसीज पार्टनर की ड्यू होगी लेके डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देता है. तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर को कैलकुलेट करके हम वो शेयर डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटर को दे देते हैं. अब अगर ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में 31st of March 2019 को फर्म क्लोज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं और पार्टनर की डेथ 1st जुलाई को हो रही है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 months का we have to calculate 3 months profit, 3 months profits of the firm. फाइन, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस 3 months प्रॉफिट में डिसीज पार्टनर का कितना शेयर है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गिव that much amount to the legal representatives of the deceased partner. Now there are two ways to calculate the share of profits of the deceased partner from the date of closure of your books of accounts till the date of death. The first way or method of calculating the share of profit of the deceased partner is according to the turnover or sales basis. Turnover, or you can say sales basis. First way to calculate the share of profit of the deceased partner is turnover or sales basis, and the second method of calculating the share of profit of the deceased partner is estimation of profits on time basis. Estimation of profit on time basis. So first is your turnover or sales basis, second method is on time basis. Fine. So let's understand these two methods with the help of example. So let's start with the first method, that is turnover
basis to calculate the share of profit, to calculate the share of deceased partner in the profits of the firm, in the profits of the firm from the date of closure of the balance sheet till the date of death. Now see, let's suppose that there are three partners. A, B and C are three partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Fine. This is the old profit sharing ratio among the partners. And let's say B died. Fine. Let's say B died and the date of death is, he died on, let's say 30th of June 2020. Fine. B died on 30th of June 2020 and we know that books of accounts are closed on, is your last date of the closure for the books of accounts is, let's say 31st of March 2020. Fine. Last day for the closure of books of account is 2020. So obviously B had died after 3 months. Fine. B had died after 3 months. After 3 months from the date of closure of your balance sheet, that is 31st of March 2020. Now, let's suppose that sales, the total sales for the year ended 31st of March 2020. Okay, total sales for the year ended 31st of March 2020 is given to us as ₹3 lakh. ठीक है बेटा, जो टोटल सेल है ना लास्ट ईयर की, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31st of March 2020, वहां तक की जो सेल है वो 3 लाख की है एंड जो 3 मंथ्स की सेल है, ठीक है, सेल ऑफ 3 मंथ्स कहां से कहां तक, 1 अप्रैल 2020 से जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ टिल द डेट ऑफ डेथ, दैट इज 30th of June 2020. ठीक है, 30th of June 2020, ये 3 मंथ्स की सेल लेट्स से 1 लाख है. फाइन. लास्ट ईयर की सेल पूरे कंप्लीट 12 मंथ्स की 3 लाख थी और सेल ऑफ 3 मंथ्स, that is starting from the beginning of the financial year 1st of April 2020 till the date of death of the deceased partner 30th June 2020, इसकी सेल मुझे 1 लाख दी हुई है. मुझे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, ठीक है, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020, ठीक है, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो 30,000 था. ठीक है, लेट्स से लास्ट ईयर प्रॉफिट 30,000 था. तो आप खुद देखो बेटा, वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड. जब मेरी सेल 3 लाख की थी तो उस 3 लाख में से 3 लाख में 30,000 प्रॉफिट हुआ. तो अगर मेरी 3 मंथ्स की सेल फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर इज 1 लाख, तो इसमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ होगा. देखिए बेटा, अगर मेरी लास्ट ईयर की जब टोटल सेल्स, फाइन, टोटल सेल्स मेरे टोटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 3 लाख थी, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट अर्न किया था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मैंने अर्न किया था ₹30,000. फाइन. तो अगर मेरी सेल 1 रुपी की हो, जस्ट द यूनिटरी मेथड विच वी हैव लर्नड इन आवर जूनियर क्लासेस, अगर मेरी सेल 1 रुपी की हो तो 1 रुपी पे मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर लूंगी, ₹30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख.
ठीक है, ये मेरी 1 रुपी की सेल पे प्रॉफिट आ गया। तो अगर मेरी सेल जो 3 मंथ्स की सेल हुई है, फाइन, 3 मंथ्स की सेल मेरी कितनी थी, 3 मंथ्स की सेल 1 लाख थी टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो इसके इसके अंदर 3 मंथ्स में मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा। सो लेट मी सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ गया 1/10। सो 1 लाख का 1/10 which is equal to ₹10,000। so that means 3 months का प्रॉफिट जब 1 लाख की सेल हुई तो आपका this is going to be your profits of the firm। ये प्रॉफिट्स किसके हैं, फर्म के हैं। कितनी देर के हैं, 3 मंथ्स के हैं। ठीक है, कितनी देर के हैं, 3 मंथ्स के हैं। अब 3 मंथ्स के प्रॉफिट में जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर कितना है, ऑब्वियसली 2/5। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट B share in 3 months profit of the firm। So how will we do that? B share in 3 months profits of the firm। 3 months का प्रॉफिट 10,000 था, B का शेयर इज 2/5। So B share will be calculated as ₹4,000। So 4,000 is going to be B share in 3 months profit of the firm। This was the first method of calculating the share of deceased partner in the profits of the firm, and this method is known as turnover। It is based upon turnover or sales basis। Let's learn the second method of calculating the share of the deceased partner in the profits of the firm, that is time basis। The second method is time basis। Let's understand this method with the help of an example। Let's say that there are 3 partners R, D and K। Let's say 3 partners are there, R, D and K, and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। This is the old profit sharing ratio among these 3 partners, R, D and K, and D died। Fine, D died। The date is on 30th of June 2020। Fine, 30th of June 2020, and the share of profit or loss of the deceased partner, it was decided that the share of profit or loss, चाहे profit हो या loss हो, जो कि deceased partner को share of profit होगा तो मिलेगा, और अगर loss होगा तो deceased partner उस loss को bear करेगा, उसके legal representatives bear करेंगे। That has decided that from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit। last year's profit, जो last year का profit आया है, जो last current financial year का profit आया है, that was 3,60,000। ठीक है, इसके बेसिस पर हमने जो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। अब बेटा हम जब ये वाला टाइम बेसिस फॉलो करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट जिस रेट पे या जिस बेस पे अर्न हो रहा था, उसी रेट उसी बेस पे इस साल भी अर्न होगा। अगर ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3,60,000, this profit is for 12 months। Fine, this is whole complete year profit, so this profit is for 12 months। so 12 months का प्रॉफिट अगर 3,60,000 है, फाइन, तो 1 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा, यूनिटरी मेथड 3,60,000 divided by 12, and this amount is going to be ₹30,000। अब बेटा अगर 30,000 1 मंथ का प्रॉफिट है
तो पार्टनर की डेथ कब हो रही है, फाइनेंशियल ईयर मेरा क्लोज होता है 31 मार्च को, पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून को, यानी कि 3 मंथ्स तक फर्म ने अगर इसी रेट से प्रॉफिट अर्न किया जैसे लास्ट ईयर अर्न किया है, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा फर्म का 30,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 90,000. So this is 90,000 is what? It is 3 months profits of the firm. ये टोटल प्रॉफिट फर्म का है जो कि फर्म ने 3 मंथ्स में अर्न किया होगा. और 3 मंथ्स कैसे? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर. अब बेटा आपके पास 90,000 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया. जो डिसीज पार्टनर है ना, उसका शेयर हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हम अभी लास्ट एग्जाम्पल में करके आए हैं. 90,000 अगर टोटल प्रॉफिट है 3 मंथ्स का, सो डिसीज पार्टनर दैट इज डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट will be calculated as his share was 2/6. So 2/6 into 90,000. So 2/6 of 90,000, and if we calculate it, it is going to be rupees 30,000. Right? This amount will be rupees 30,000. So this is your share of deceased partner in 3 months profit of the firm. That is from the date of closure of the balance sheet till the date of death of the partner. Now beta, by these examples we have learned how to calculate the amount of the share of the deceased partner in the profits of the firm from the date of closure of the balance sheet till the date of death. अब बेटा इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जैसे कि आर और के, ये मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं. केस वन अगर तो रिमेनिंग पार्टनर्स की जो न्यू रेशियो है, केस वन आर और के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर डी चला गया तो इनकी जो न्यू रेशियो है इट रिमेन्स द सेम. अगर तो सेम है, इट इज 3:1, सेम है एज बिफोर. अगर न्यू रेशियो इज सेम एज द ओल्ड रेशियो, तो हम क्या करते हैं बेटे कि इस 30,000 को डी को तो देना है, तो डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सो माई एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू D's capital account, and amount to be recorded is 30,000. So 30,000 debited in profit and loss account and 30,000 credited in your partner's capital account. देखो बेटा, हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल देने का, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं. तो गेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करते हैं, राइट, इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं. अब इस केस में अगर हमारी न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर सेम होती है, राइट, तो इस केस में हम डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए देते हैं बेटा कि सबसे पहले तो ऑन द डेट ऑफ डेथ हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाएंगे. आपने जो 2 मेथड सीखे, टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड मेथड्स हैं. ये जितनी भी मेरे पास ये जो 90,000 प्रॉफिट आया था टाइम बेसिस मेथड से, इट वाज जस्ट एन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट. ये टोटल एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आया है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है. तो हम एक
फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस अकाउंट खोल देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट। जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा और जब मैं एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, उस टाइम पे ये प्रॉफिट मैं डी को क्रेडिट कर चुकी हूँ। तो जब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को, जब फाइनल अकाउंट्स बन रहे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी और इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्वेश्चन में मुझे ये दिया हो कि आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, फाइन, इस केस में क्या थी, आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, इट वाज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज सेम एज ओल्ड रेशियो, है ना। तो मैंने जो प्रॉफिट दिया डिसीज पार्टनर को, वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया। सेकेंड केस आई एम राइटिंग हियर, सेकेंड केस में लेट्स से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आर एंड के, उनकी न्यू रेशियो चेंज हो रही है आफ्टर द डेथ ऑफ डी, और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between R and K, let us say it is equal. Fine. Now in this case, we are going to pass the entry by debiting the gaining partner's capital account and crediting the deceased partner capital account. For that, we will first calculate that what is the gaining ratio. So gaining ratio will be new ratio minus old ratio. For R, new ratio is 1/2. And old ratio is 3/6, which is equal to obviously 0/6, because 3/2 is 1/2 only, so 0. So R is neither gaining nor losing. Then for K it is 1/2 minus 1/6, so 6 is the LCM, 3 minus 1 which is equal to 2/6, यानी कि D का सारा शेयर K ने ले लिया, D का शेयर 2/6 था, K ने गेन कर लिया 2/6, पॉजिटिव रेशियो आ रही है 2/6, तो इस केस में K विल कॉम्पनसेट टू D। तो इस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, वी विल पास दी एंट्री एज K's कैपिटल अकाउंट, K कॉम्पनसेट करेगा क्योंकि K इज द गेनिंग पार्टनर, K's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू D's capital account, to D's capital account, and the amount would be just the same, 30,000. These are the two cases for the treatment of goodwill. In case of the death of a partner, treatment of your self-generated goodwill. Let me recapitulate again. अगर बेटा हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेथ, पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की सेम रहती है, तब तो जो डिसीज पार्टनर का शेयर है गुडविल में, प्रॉफिट में, सॉरी नॉट गुडविल, जो हमारा डिसीज पार्टनर का शेयर है प्रॉफिट्स में, वो हम देते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सो माय एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट व्हिच वी हैड कैलकुलेटेड 30,000. और अगर मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज हो जाती है, देन वील कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. मेरे इस केस में आर ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, के इज द गेनिंग पार्टनर, डी का सारा शेयर 2/6 के गेन कर रहा है, तो के विल कॉम्पनसेट डी द डिसीज पार्टनर, और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके that is was 30,000. So my entry will be K's capital account debited to D's capital account. So जो शेयर ऑफ प्रॉफिट D को डिसीज पार्टनर को मिलना है, डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना है, that will be paid by K. So K's capital account is debited. I hope that the accounting treatment of calculation of your profits in case of death of a partner, both by turnover basis and time basis, is clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you very much.